اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی اظہر من آثار سلطانہ و جلال کبریائہ ما حیر مقل العیون من عجائب قدرتہ و ردع خطرات ہمائہ من نفوس ان عرفان کنہ صفتہ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم ارسلہ وعلام الہدی وارثۃ ومناہج الدین طامسۃ فصدا بالحق ونصح للخلق وہدا الی الرشد وامر بالقسط سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطاہرہ ہم عضو سرہ ولجا امرہ وعیبۃ علمہ وموئل حکمہ وکہف کتبہ وجوال دینہ بہمقام ظہرہ واضح برتیاد و فرائض ولعنۃ اللہ علی اعدائہم جمیعا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ تو جو ہے گفتگو کا آغاز کیا جا سکے۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، مجلس امام حسین علیہ السلام کا انعقاد ہے۔ تو پہلا جملہ آپ کی ضیافت ایمانی کی خاطر یہی کہنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جو کسی مذہب کی محتاج نہیں ہے۔ بندہ جسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو اسے چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہر انداز سے کرے، لیکن چونکہ آج کل مجالس زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ، ہر فرقے میں، ہر مسلک میں، ہر مذہب میں مختلف طبقے بن گئے، تو ہر بندہ اپنے پسندیدہ ذاکر کو، مولوی کو اپنی پسند کی شخصیت پرستی میں پڑھ کے دین حقہ کو چھوڑ کے اندھی تقلید کرنے لگ گئے ہیں۔ حالانکہ جو بندہ گھر سے، کوئی بندہ بھی ناراض نہ ہو میری باتوں سے، جو بندہ گھر سے اس ارادے سے چل کے آیا ہے کہ میں نے مجلس حسین سننی ہے، تو پھر آ کے بھی مجلس حسین میں بیٹھے، کیونکہ آداب مجلس ہیں۔ تماشا وہ دیکھتے ہیں جن کے لیے یہ مجلس تماشا ہو، تماشائیوں کی طرح نہ بیٹھو۔ جب بھی بیٹھو، کوئی بھی پڑھ رہا ہو، یہاں ذکر امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ہی تماشائی بن کے بیٹھو گے تو پھر لوگوں نے تو آپ کے مذہب کا تماشا بنانا ہی۔ درود پڑھ لیجئے بلند آواز۔ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام، ذکر امام حسین علیہ السلام، یہ ہمیں آداب محفل بھی سکھاتی ہے، آداب مجلس بھی سکھاتی ہے کہ مجلس کے آداب کیا ہیں، محفل کے آداب کیا ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، یہاں سے عقیدہ بھی ملتا ہے، ادب بھی ملتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علم، عقیدہ، عمل جتنا بھی ہو بغیر ادب کے کسی کام کا نہیں۔ توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ اور جیسے علم بغیر معرفت کے کسی کام کا نہیں، تو عمل کسی ادب کے بغیر کسی کام کا نہیں۔ آپ جہاں بھی مجلس امام حسین میں جاؤ تو آداب محفل کے ساتھ شریک ہوا کریں۔ تو عزیزان گرامی قدر، امام حسین کا ذکر ہے، زیادہ میں نے زحمت آپ کو دینی نہیں ہے، صرف اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو صرف انسانیت میں نہیں بلکہ یہ جو 14 ہے نا، 14 ان میں محمد مصطفیٰ لا شریک ہے، مگر 4 محمد اور بھی ہیں۔ علی بے مثال ہے، مگر 4 علی اور بھی ہیں۔ حسن بے نظیر ہے، مگر 2 حسن اور بھی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بس اتنا جان لو، عرش پہ وہ اکیلا ہے، فرش پہ حسین اکیلا ہے۔
جو بندہ رات کے اس پہر امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے آیا اس کے لیے بات ہے کہ یا وہ اکیلا ہے عرش پر، اس کے جیسا کوئی نہیں، فرش پہ حسین نے بتایا کہ میرے جیسا بھی کوئی نہیں، کیونکہ دنیا نے آج تک آنے والی ماؤں نے لاکھوں یزید جنے، کروڑوں یزید کی اولاد بنے، مگر حسین کل بھی ایک تھا، حسین آج بھی ایک ہے۔ بندے چپ پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں امام حسین بتایا وہی گیا جس نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا اور 10 محرم کو شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت وہ فضیلت ہے کہ جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ بس یہ اور بات ہے کہ زیادہ مولا علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں اور امام حسین کے زیادہ مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ اگر آپ بیدار ہیں تو 2-4 جملے امام حسین کی فضیلت کے میں کسی بشر کی زبانی نہیں بلکہ معصومین کی زبانی بتانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ کون حسین؟ اور یہ تو وہ حسین ہے جو میں جانتا ہوں، اللہ جانے وہ حسین کیا ہے جسے سلیمان جانتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ جسے علی جانتا ہے وہ حسین کیا ہے، اور جسے جلی جانتا ہے وہ حسین کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ قبلہ حدیث قدسی موجود ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ جُنُودًا مَقْرُونَةً فِي عَرْشِ الرَّحْمَٰنِ، کہ اللہ کے لیے اس کے عرش پر کچھ اس کے پوشیدہ خزانے ہیں۔ مفاتیحها السنۃ الشعراء، شعراء کی زبانیں ان خزانوں کی چابیاں ہیں، دنیاوی شاعروں کی نہیں، ان شاعروں کی جو مدائح آل محمد بیان فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے فرمایا تھا، اے حسان یاد رکھ، جب تک تیری زبان ہماری مدح میں بولتی رہے گی تیری زبان پہ روح القدس جاری رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ شاعروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے قلم نے کون سا راز افشاں کر دیا ہے۔ جیسا شہید محسن نقوی نے ایک مسدس ایک نظم لکھی تھی، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ، لکھی ہے نا، بڑی مشہور ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ یہ شہید محسن نقوی نے بہت بعد میں لکھی۔ آل محمد کے گھرانے کے 5 فرد ایسے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کون کون سے۔ کتابوں میں ترتیب اور ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک کتاب میں لکھا ہوا، کوئی کہیں کسی کتاب سے میں نے لیا، کوئی کسی کتاب سے، کتابوں میں ترتیب اور ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اکثر جہاں پہ بندہ جو بھی بات کرتا ہے پورا سال اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے، اور حوالوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، دلیلوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہم آل محمد کے دشمن نہیں ہیں، آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن جہاں جو بات کرتے کی جاتی ہے کوئی اور بات کرے تو کبھی کسی سے دلیل نہیں مانگی، لیکن جب میثم رضا بات کر کے جاتا ہے پورا سال بحثیں ہوتی ہیں۔ وہ مولا کے فرمان پڑھتے ہیں، دلیلوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن عجب بات ہے کہ مولا کا فرمان دکھاتا ہوں تو کہتے ہیں مجتہد کا فتویٰ لے کے آؤ، مجتہد کا فتویٰ دکھاتا ہوں تو کہتے ہیں مولا کا فرمان لے کر آؤ۔ وہ سمجھ نہیں آتی تمہارا شمار کہیں ان لوگوں میں سے تو نہیں کہ رسول معجزہ دکھاتے تھے تو کہتے تھے کہ آیت لے کر آؤ، آیت دکھاتے تھے تو کہتے تھے اس کا جادو تو آسمانوں پہ بھی چلتا۔ مانو، آل محمد کو ماننے کا حکم ہے، سوچنے کا حکم نہیں، اعتراض کرنے کا حکم نہیں۔ آل محمد کو ماننے کا حکم ہے، مانو آل محمد کو۔ اور یہ یاد رکھو کیا رسول پاک نے آخری وقت اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ نہیں فرمایا تھا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ لوگو اے میری امت یاد رکھو میں اس دنیا میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ کوئی قیامت کی خبریں دینے والا رسول، اس زمانے کے آخری لوگوں کی، مردوں کی، عورتوں کے حالات بتانے والا رسول، حکومتوں کے حالات بتانے والا رسول، کیا تمہارے اختلافات سے واقف نہیں تھا؟ یہ سارے جواب ہم نے دینے ہوتے ہیں۔
कोई भी मौला का फरमान पढ़ दें तो शक में पड़ जाते हैं। मजलिस हुसैन है ही आले मोहम्मद की फजीलत बयान करने के लिए, क्योंकि रसूल ने फरमाया था ज़य्यनू मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को अली के ज़िक्र से जीनत दो, अली के ज़िक्र से। हमसे कहते हो नमाज की तबलीग, और सारा साल नमाज की तबलीग होती है। रसूल को पता नहीं था कि नमाज की तबलीग करनी है। रसूल ने नमाज का नहीं कहा, कहा जहां भी बैठो मेरे भाई अली का जिक्र करो। ज़य्यनू मजालिसकुम, मुझे शिया कौम का कोई बच्चा जो छोटे से छोटा बच्चा है ये दिखा दो, इसे पता नहीं है नमाज वाजिब है। अरे हम शिया कौम कोई आम कौम नहीं है। हमारा बच्चा आंखें बाद में खोलता है, पहले दीन की तालीम देना शुरू कर देते हैं। माँ की गोद से दीन की तालीम मिलना शुरू हो जाती है। क्या शिया कौम के हर बच्चे को नहीं पता नमाज वाजिब है? ये इमाम हुसैन और मौला अली बादशाह के जिक्र के साथ दुश्मनी है तुम्हारी। क्या रसूल की इस हदीस पे तुम अमल क्यों नहीं करते कि रसूल पाक ने फरमाया ज़य्यनू मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र के साथ। क्या इस हदीस पे तुमने कभी अमल किया? तो क्या रसूल पाक ने इस दुनिया से जाते हुए आओ सारी ज़िंदगी उस बंदे की बिला तनख्वाह के नौकरी करने को तैयार हूँ, क्या रसूल पाक ने अगर हर हालात से वाकिफ़ थे, इल्म गैब जानते थे, कलमा तो सारे ही पढ़ते हो ना, इख्तलाफ तो आगे जाके है ना, इल्म गैब जानते थे, आपकी इस्लाह की खातिर बात कर रहा हूँ, इल्म गैब जानते थे, हर बात से वाकिफ़ थे, तो रसूल पाक कहीं किसी हदीस में ये दिखा दो रसूल ने ये कहा हो कि मैं मुज्तहिद छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तौज़ीउल मसाइल छोड़ के जा रहा हूँ। यार हम मानने को तैयार हैं, तुम भी तो कोई चीज़ दिखाओ ना रसूल की ज़बानी। ये सारा ठेका हमने उठा रखा है कि अली की विलायत भी हम दिखाएं, मासूमीन के फरमान भी हम दिखाएं, आले मोहम्मद की फजीलत भी हम दिखाएं। तुम लोग सिर्फ एतराज़ करने के लिए पैदा हुए हो कि तुम लोगों ने बस मौला के फरमान में शक करके एतराज़ ही करना है। ये याद रखो रसूल पाक ने अपनी 63 साल ज़िंदगी में कभी ये नहीं कहा कि मेरे मुज्तहिदीन होंगे आखिरी ज़माने में, उनसे जाके सवाल करना, कोई तौज़ीउल मसाइल होगी उन पे अमल करना। रसूल पाक ने मुस्नद होकर यही फरमाया है कि या अल्लाह का कुरान है या मेरी अहले बैत है। कुरान भी मौजूद है, अहले बैत में से ज़माने का इमाम भी मौजूद है। कई बंदे हैरान हो के मेरी तरफ देख रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं कोई घबराने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं इस्लाह की खातिर बात करता हूँ। देखिए बात तनकीद की खातिर नहीं होनी चाहिए, बात इस्लाह की खातिर होनी चाहिए। सोचो तो सही ना, ये हम पे गलू के मुकस्सरी अपना नुसैरियत के गलू के फतवे, यार ये बंदा बड़ा गलत पढ़ता है। मैंने अगले दिन भी भाई सुहेल को मैंने हवाला दिया जो मैं पिछले साल मजलिस पढ़ के गया था। मासूम का फरमान दिखाएं कहते हैं तौज़ीउल मसाइल, तौज़ीउल मसाइल दिखाएं कहते हैं मासूम का फरमान। हद नहीं मुक गई यार, कहीं हमें भी तो इमाम हुसैन का जिक्र मनाने दो। ये 10 दिन आले मोहम्मद की फजीलत और मुसीबत बयान करने के, तो जो है या नहीं है। सबसे पहले 5 हस्तियाँ जिन्होंने ये लफ्ज़ कहा न पूछ मेरा हुसैन क्या है, कौन कौन सी? सबसे पहले ये जुमला कहा हज़रत जिब्रील ने। कब? जब 3 शबानुल मुअज़्ज़म को अल्लाह ने हुक्म दिया अंज़िल फ़ी अल्फ़ कबील मिनल मलाइका, ऐ जिब्रील 1000 कबील फरिश्तों का लेके ज़मीन पे जा और मेरे हबीब को मेरी नियाबत में जाके हुसैन की आमद की मुबारकबाद दे। जिब्रील लेके चला। आपको पता होना चाहिए ये मुत्तफ़िका हदीस में मौजूद है कि 1 लाख फरिश्ते इकट्ठे हों तो 1000 कबील एक कबील बनता है। 1 लाख फरिश्ता इकट्ठा हो तो एक कबील बनता है। और जहाँ 1000 कबील फरिश्ते हों, 1000 को 1 लाख से ज़रब दो, कितने फरिश्ते बने होंगे? हवा, फ़ज़ा, खला, धरती, ज़मीन हिल रही थी शय पर मलकूत से। कहीं एक पंखा चल रहा हो तो उसकी शय शय की कितनी आवाज़ होती है ना। जहाँ लाखों करोड़ों फरिश्तों की आवाज़ होगी, उनकी सरसराहट की आवाज़, उनकी शाय शाय की आवाज़ फुतरत ने सुनी। बड़ी मुश्किल से अपनी ज़ख्मी बदन को, बिखरे हुए बदन को समेटा और जिब्रील से मुखातिब होकर कहता है जिब्रील क्या हुआ, ये आसमान फरिश्तों से खाली हो रहा है, कहीं क़यामत तो नहीं आ गई?
कोई क़यामत तो नहीं आ गई? जिब्रील कहता क़यामत नहीं आई, क़यामत का मालिक ज़मीन पे आया है। क़यामत नहीं आई, क़यामत का मालिक ज़मीन पे आया है। याद रखो, क़यामत का मालिक हुसैन है, हुसैन का मालिक अल्लाह है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। क्या कुरान मजीद में पढ़ते हैं? कोई बंदा एतराज़ कर सकता है, आज ये नई बात लेकर आया कि मालिक यौमिद्दीन, यौमिद्दीन का मालिक है अल्लाह। यौमिद्दीन का मालिक अल्लाह है। यौमिद्दीन का मालिक कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ने यहाँ पे लफ्ज़ क़यामत नहीं कहा, कहा दीन के यौम का मालिक मैं हूँ। दीन का यौम, दीन कौन है? ओए अगर आपको याद नहीं है अली वालों, तो आओ मैं तुम्हें अजमेर शरीफ में ले जाता हूँ, जहाँ पे सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ये कहते हुए नजर आते हैं, दीन अस्त हुसैन। क़यामत के दिन हुसैन का दिन होगा। क्या रसूल पाक ने नहीं फरमाया था, जब हदीस किस्सा में इमाम हुसैन तशरीफ़ लेकर गए, रसूल पाक ने फरमाया था वालेकुमुस्सलाम या वलदी व या शाफ़ी उम्मती, ऐ बरोज़ महशर मेरी उम्मत की शिफात करने वाले। क़यामत का दिन हुसैन का दिन है, याद रखिए। क़यामत का मालिक ज़मीन पे आया। फुतरस कहता है अच्छा हुसैन आया है, जिब्रील मुझे भी ले चल, इतने फरिश्तों के साथ जा रहा है, परों पे बिठा ले मुझे ले चल। कहता क्या करेगा जाके? कहने लगा ओहदा ना मिले नासिरी, बस शिफा मिल जाए हुसैन के सदक़े में, यही बहुत है, बस ये कहना था। या फुतरस का चेहरा उतरा, कहने लगा जिब्रील मुझे ढारस दे, मुझे तसल्ली दे, खाली वापस तो नहीं आऊँगा, माफ़ी मिल जाएगी हुसैन से, शिफा अता हो जाएगी, कहीं खाली तो नहीं लौटाया जाऊंगा। बस ये फुतरस का कहना था। जब मुस्कुरा के जिब्रील ने कहा ला तसअलनी अन हुसैन, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। पाते रहे हुसैन से लाखों फरिश्ते फैज, पाते रहे हुसैन से लाखों फरिश्ते फैज, फुतरस के वक्त अच्छे थे ये मशहूर हो गया। नाराए हैदरी। क्यों ना पूछूं, आखिर आगे दलील भी तो हो। जिब्रील क्या वजह है क्यों ना पूछूं हुसैन के मुतल्लिक? जिब्रील कहता तुझे नहीं पता, ओए हुसैन तो आया ही अल्लाह के नाफरमानों को अल्लाह से छुड़वाने के लिए है। पहले जिब्रील ने कहा। दूसरा, जनाब मुस्लिम बिन अकील ने जो जुमला कहा दरबार इब्न ज़ियाद में, जब बिफरा हुआ सफ़ीर हुसैन इब्न ज़ियाद के दरबार में दाखिल हुआ, बड़ा लंबा मुकालमा हुआ है, एक जुमला कहना जो मकसद है। दाखिल हुआ तो सरकार को एक सिपाही ने कहा अमीर को सलाम नहीं किया तूने? सरकार ने सर बुलंद करके कहा भाई याद रख माली अमीर सिवा हुसैन, हुसैन के सिवा मुस्लिम का अमीर ही कोई नहीं है। अब इब्न ज़ियाद हैरान होकर कहता है मुस्लिम वजह क्या है? ये हुसैन को तू इतना मानता है, हुसैन के लिए तूने इतनी बैयत ली, तख्त मेरा ताज मेरा, मुझसे डर ही नहीं रहा। अभी मेरे जलाद की तलवार तेरी गर्दन पे फिरे, मैं इशारा करूं तेरा सर तन से जुदा कर दे, लेकिन फिर भी तू हुसैन के कसीदे पढ़ रहा है। आखिर क्या देखा है तूने हुसैन ने? बस इसका ये कहना था। या जितने जख्म थे मुस्लिम के बदन पे, लब बन के मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा के मुस्लिम कहता ला तसअलनी अन हुसैन, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। अल्लाह या रसूल या। आपकी ज़हमतों को तमाम करते हुए मैं जल्दी गुजरना चाहता हूँ। क्यों ना पूछूं मुस्लिम क्या है हुसैन? मुस्लिम मुस्कुरा के कहता है अब हर कोई अपने म्यार का तारफ़ करवाएगा ना, वो जिब्रील का तारफ़ था, ये जनाब मुस्लिम का तारफ़ है। मुस्लिम मुस्कुरा के सफ़ीर हुसैन कहते हैं हुवा इमामुद्दारैन बिद्दवा मिन नय्यरैन तोहरुन ताहिरुन मुताहिरुन मिन ताहिरैन व इमामु का रिजसुम मिन रिजसैन। इमाम जनाब मुस्लिम कहते हैं कि हुसैन कायनात का इमाम है जब तक शम्सो कमर बाकी है। तोहरुन ताहिरुन मुताहिरुन, हुसैन ताहिर है, हुसैन तहारत है, हुसैन मुताहिर है। फिर मुस्कुरा के जनाब मुस्लिम कहते हैं ओ झूठी शराब के नशों में बदमस्त हरामजादे, तुझे नहीं पता जो तेरा इमाम है खुद भी रजस है, पैदा भी दो रजसों से हुआ, खुद भी रजस पैदा भी दो रजसों से।
पहले जिब्रील ने कहा, दूसरा मुस्लिम बिन अकील ने कहा, तीसरा मौला अली ने कहा, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। कब मस्जिद नबी भरी हुई है लोगों से, हर बंदा अपने काम में मशगूल है। एक कोने में हुसैन बादशाह बैठे देख रहे हैं अल्लाह के अर्श की तरफ, लेकिन मौला अली बादशाह की नज़रें टिकी हुई है हुसैन के काबा रुखसार पर। ऐनुल्लाह अपनी नज़रें बिल्कुल झपक ही नहीं रहा, हर बंदा अपने काम में मशगूल। हुसैन अर्श को देख रहे, अली हुसैन को देख रहे, सुलेमान अली को देख रहा है। थोड़ा सा बेदार हो जाइए, आपकी जहमतों को तमाम करने जा रहा हूँ। हुसैन को अली देख रहे, अली को सुलेमान देख रहा है। काफ़ी दार देखने के बाद सुलेमान अपनी जगह से उठा, अली के कदमों पे हाथ लगा के कहता है, या मौला या इन्नी आजुन्नो अन्नका तो हिब्बुल हुसैन अक्सर बिन हसन। या मौला, मुझे ऐसे क्यों महसूस होता है कि आप हसन से ज़्यादा हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हसन से ज़्यादा हुसैन से मोहब्बत करते हैं। सुलेमान का ये सवाल करना था, या झूम के अली ने कहा, ला तसअलनी अन हुसैन, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। चौथा, रसूल ने फरमाया, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। कब? रसूल पाक का एक सहाबी है जिसका नाम है अबू दरदा, रसूल का सहाबी है अबू दरदा। ये बचपन में मौला हुसैन के साथ एक खेल खेलता था जिसे अरबी में मिधात कहते हैं। एक लकड़ी का गोल पहिया होता, एक बंदा उसे फेंकता, दूसरा तीर से उसका निशाना लेता, जिसका निशाना लग जाता वो हारने वाला जीतने वाले को अपने कंधों पे उठाता और एक मुकर्रर मकाम तक लेके जाता। जब कभी इमाम हुसैन हार जाते, देखिए इमाम के खेल में हिकमत होती है, किसी ना किसी राज से पर्दा उठाना होता है। जब कभी इमाम हुसैन हार जाते तो कहता अबू दरदा, मौला मुझे सवार कीजिए अपने कंधों पे। हुसैन मुस्कुरा के कहते, आ तारकब बदन राकबा आला जसद रसूलुल्लाह, ओए उस बदन पे सवार होगा जो मोहम्मद के बदन पे सवार होता रहा है। और यार बोलिएगा मेरे साथ, थोड़ा सा बेदार हो जाइए, आपकी जहमतों को तमाम करने जा रहा हूँ। उसके बदन पे सवार होगा जो रसूल के बदन पे सवार होता रहा है। और जब कभी अबू दरदा हार जाता, इमाम हुसैन कहते उठा मुझे, तो बड़ा पुरलत्फ जुमला है। ये कहता, मौला मैं नहीं उठाऊंगा, आपने मुझे बारी नहीं दी थी, मैं आपको बारी नहीं दूंगा। मुस्कुरा के हुसैन फिर कहते, अमा ताहमिलो बदन हमालहु रसूलुल्लाह, ओए उस बदन को नहीं उठाता जिसे रसूल उठाते रहे। आया आया, मौला आपको सलामत रखे। या थोड़ा सा बेटा, थोड़ी सी नींद को दूर कीजिए। थके बैठे, आपकी जहमतें तमाम करना चाहता हूँ लेकिन पैगाम मुकम्मल करके। सारा दिन यही होता, 20 मरतबा अबू दरदा साहबी रसूल ही मौला हुसैन को उठाते। एक दिन यही अबू दरदा रसूल की बारगाह में आया, सलाम अर्ज करके कहते, या रसूलल्लाह मुझे आज तक इस बात की समझ में नहीं आई, हालांकि तेरे बेटे ने कभी मुझे बारी नहीं दी, सारा दिन मैं उठाता हूँ, लेकिन गुस्सा आना चाहिए, पता नहीं क्या वजह है, उल्टा हुसैन के साथ मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है, मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। अबू दरदा का ये कहना था। मुस्कुरा के रसूल बोले, ला तसअलनी अन हुसैन, अबू दरदा न पूछ मेरा हुसैन क्या है। लगा या रसूलल्लाह क्यों ना पूछो, वजह क्या है? रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं कि इन्नहु कंज़म मिन कुनूज़िल्लाह व सिर्रुम मिन इसरारिल्लाह कुल्लमा जानी जिब्राइल इल्लमा औसानी अन रब्बी बे विलायती अली इब्न अबी तालिब व मोहब्बतुल हुसैन। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं, इसलिए ना पूछ कि हुसैन अल्लाह के राजों में से एक राज है। इन्नहु कंज़म मिन कुनूज़िल्लाह, हुसैन कंज है, अल्लाह के राजों में से एक राज है। वह सिर्रुम मिन इसरारिल्लाह, अल्लाह के राजों में से एक राज है, अल्लाह के ख़जानों में से एक ख़जाना है हुसैन। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं, अबू दरदा बस तुझे क्या क्या बताऊं, कुल्लमा जानी जिब्रील, जिब्रील जितनी मर्तबा भी मेरे पास आया,
اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ تحقیقیں ہیں جو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ کلما جانی جبریل، آپ کو پتہ کتنی مرتبہ جبریل حضور کے پاس آیا؟ 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ آیا، 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ۔ کلما جانی جبرائیل الا ما اوصانی عن ربی عن ولایت علی و محبت الحسین، کہ جتنی مرتبہ بھی جبریل میرے پاس آیا، اللہ کی آیت دینے کے بعد مجھے یہی حکم دیا کہ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب علی کی ولایت کا خیال رکھنا، حسین کی محبت کا خیال رکھنا۔ پہلے جبریل نے کہا، دوسرا مسلم بن عقیل نے کہا، تیسرا مولا علی نے کہا، چوتھا رسول نے کہا، پانچواں اللہ نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کب؟ میں نے کہا تھا میں ترتیب رتبے کے لحاظ سے بدل گیا ہے، وہی جہاں 3 شعبان سے شروع کیا، 3 شعبان المعظم کو جب جبریل کو اللہ نے حکم دیا انزل فی الف قبیل من الملائکہ، کہ 1000 قبیل فرشتوں کے لے کے جا اور 40 دن مسلسل جاتا رہ، تو وہی فرشتے تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حیران ہوا جبریل، کہنے لگا مالک گستاخی معاف، وہ کسی نے مثال بنائی ہے نا کہ زور آور کے 5 حصے، جس نے بھی بنائی ہے بڑی صحیح بنائی ہے۔ جبریل کہتا ہے مالک کیا وجہ ہے؟ حسین کے بڑے بزرگ بھی آتے رہے ہیں، تیرا محبوب ترین نبی اس دنیا میں آیا، مجھ اکیلے کو بھیجا تھا جا جا کے ابو طالب کو مبارک دے، تیرا بھتیجا دنیا میں آ گیا ہے، تیرا ولی علی تیرے گھر میں آیا، مجھ اکیلے کو بھیجا کہ میرے حبیب کو مبارکباد دے کہ میرا ولی میری حجت علی میرے گھر میں آ گیا ہے، تیرا حجاب سیدہ آئیں میں اکیلا گیا، حسین کا بڑا بھائی حسن آیا میں اکیلا گیا مبارکبادی کے لیے، یہ کیا وجہ ہے؟ لاکھوں فرشتے روز لے کر جاؤں گا اور 40 دن جاتا رہوں گا، وجہ کیا ہے؟ کتاب میں جملے یہ ہیں کہ پردہ توحید بھی جوش سے لہرانے لگا، آواز قدرت آئی جبریل لا تسالی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا۔ یا مالک کیا وجہ، کیا ہے حسین جس کی آج تک ہمیں سمجھ نہ آ سکی؟ آواز قدرت آئی خلقتہ بقدرتی وردا بردا مشیتی وتنفسا بتنفیس جبروتی۔ آواز قدرت آئی حسین وہ ہے جسے مجھ اللہ نے اپنی قدرت سے خلق فرمایا۔ پوری مجلس میں نے ختم کر دی ہے، نتیجہ دینے جا رہا ہوں، جسے مجھ اللہ نے اپنی قدرت سے، جو صاحبان معرفت اور اہل علم تشریف فرما ہے ان کے لیے میں نے ایک اشارہ دے کے جملہ کہنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے حسین وہ ہے، جبریل کو بتا رہا ہے اللہ حسین وہ ہے جسے مجھ اللہ نے اپنی قدرت سے خلق فرمایا۔ آؤ قرآن میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے انی خالق باشار من تین، آدم کے لیے کہہ رہے آدم مٹی سے بنا، حسین کے لیے کہہ رہا حسین میری قدرت سے بنا۔ توجہ توجہ، حسین میری قدرت سے بنا، حسین میری قدرت سے بنا۔ کون سمجھ سکتا ہے حسین جیسے عظیم بادشاہ کو؟ آؤ خدا کی قسم چوتھی مجلس ہے آج کی اور میں بالکل نہیں تھکا، پتہ نہیں آپ تھکے بیٹھے ہیں یا بیزار بیٹھے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں بالکل نہیں تھکا۔ آؤ میرے تھوڑا سا 1-2 منٹ کے لیے میرا ساتھ دو، آؤ یا نہیں ایسے ساتھ تو نہیں ہوتا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یار یہ مولا کے ذکر کی راتیں ہیں، 1 منٹ میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ آؤ تولنے ہیں حسین کو، آؤ مل کے تولنے ہیں، تولتے ہیں، مل کے تولتے ہیں۔ کہاں؟ یہاں نہیں، بروز محشر تلے گا حسین، یقیناً تلے گا حسین۔ کیسے؟ ساری خدائی کے سامنے تلے گا۔ مستند کتابوں سے پڑھ رہا ہوں کہ جب ساری خدائی اللہ کی بارگاہ میں اکٹھی ہوگی تو کائنات کا منصف ترین رسول آگے بڑھے گا، اللہ کے عرش میں ہاتھ ڈال کے کہے گا پروردگارا میں محبوب ترین نبی ہوں تیرا، بتا میرا اس آخرت میں کیا حصہ ہے،
मेरा इस कायनात में आखिरत में क्या हिस्सा है? मेरा हबीब अपना हिस्सा मांगता है, हिस्सा मांगता है। हाँ परवरदिगार मेरा हिस्सा क्या है बता जरा। आवाज़ को देते यो फरिश्तों, लपेटो ये सारा हिसाब किताब, उठाओ ये हिसाब किताब के रजिस्टर, उतारो ये अमाल तोलने का मीज़ान, चलो उठो। ऐ मेरा हबीब, वो है जन्नत, वो है जहन्नम, ये खड़ी है मेरी सारी मखलूक। तेरी मर्जी, जिसे मैंने जन्नती लिखा है उसे जहन्नम में भेज दे, तेरी नबूवत की कसम नहीं बोलूँगा। जिसे मैंने जहन्नमी लिखा है उसे जन्नत में भेज दे, तेरी रिसालत की कसम नहीं बोलूँगा। तुमने आले मोहम्मद को समझा क्या है? फैसला हो जाएगा। ये और बात है कि रसूल अल्लाह की मर्जी के खिलाफ फैसला करेंगे ही नहीं, क्योंकि आदल भी तो है ना। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अली आगे बढ़ेंगे। परवरदिगारा वो मेरे बड़े भाई का हिस्सा था, मेरा हिस्सा या अली या अली या अली, मेरा हिस्सा क्या है? आवाज़ को बताता है कि वो जन्नती जन्नत में है, वो जहन्नमी जहन्नम में है। या अली तेरी मर्जी, जन्नत को उठा के जहन्नम में पलट दे, जहन्नम को उठा के जन्नत में पलट दे, तेरी विलायत की कसम नहीं बोलूँगा। बेदार हो जा, बेदार हो जा, बेदार हो जा, तेरी विलायत की कसम नहीं बोलूँगा। फिर हुसैन आगे बढ़ेगा। परवरदिगारा वो मेरे बुजुर्गों का हिस्सा था, मेरा हिस्सा। आओ मेरा मौला मदद करना, तेरे बेटे के फजाइल पढ़ने जा रहा हूँ तेरी ज़बानी। परवरदिगारा मुझ हुसैन का हिस्सा। आवाज़ को देता है कि हुसैन वो थे तेरे बड़े, वो तो तेरे बुजुर्ग, वो बड़े थे तेरे, लेकिन उनमें से किसी ने मेरा दीन बचाया, किसी ने मेरी शरीयत बचाई, किसी ने मेरा कलमा बचाया, किसी ने मेरा दीन बचाया, किसी ने मेरी शरीयत बचाई, किसी ने मेरा तारफ़ करवाया। लेकिन हुसैन तू वो है जिसने मुझे बचाया है, जिसने मुझे बचाया है। हुसैन याद रख, उनके लिए मखलूक का फैसला हुआ, तेरे लिए उनका फैसला होगा। ये तेरे सारे बुजुर्ग कितार में खड़े हैं, तू इजाजत देगा तो जाएंगे, नहीं तो खड़े हैं। नहीं 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 नहीं, हैं पालने वाले, हैं मारने वाले। मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं। आवाज़ गुजरता है कि मैं तो ज़माने के जाहिलों को दुनिया में भी कई मर्तबा बताने की ये कोशिश की है। याद नहीं, उस वक़्त को याद कर जब तेरा नाना सजदे में सर रखता था, तू आके बैठ जाता था, क्या तेरे सामने सर उठाता था? नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे दरूद पढ़ लीजिए बुलंद। बस मौला आपको सलामत रखे, दर्स उतना जितना याद रहे, जिस मकसद के लिए आए हो। वो शहजादा है, करबला के शहीदों में हर शहीद अपने लिबास में गया है। ये वो शहजादा है जो कफन पहन के गया। 10 मुहर्रम की रात शरीकतुल हुसैन जैसी बहन ने हुसैन बादशाह से कहा, आए देखे तो सही हमारी कुर्बानियाँ तैयार कैसे हो रही हैं। दोनों भाई और बहन ख़याम का चक्कर लगाने के लिए बाहर निकले। अज़ादारों, जिस खैमे के दरवाजे पे जाते हैं अजीब रंग में तैयारी है। माँ बेटे को गोद में लेके बैठी है, कहती है दूध उस वक़्त बख्शूंगी जब तेरी लाश आएगी। भाई बहन आपस में बैठे हैं तो बहन भाई के गलों में बाहें डाल के कहती है, भाई बहनों का मान होते हैं, लेकिन हुसैन से बढ़ के तू प्यारा नहीं है। कल तेरी कुर्बानी जब आएगी मैं तुझसे राज़ी हो जाऊंगी। बीवी शोहर को लेकर बैठी है, रो के कहती है, शोहर वारिस होते हैं, लेकिन हुसैन जैसे वारिस पे तुझ जैसे कई वारिस कुर्बान कर दूंगी। ये हालत थी। या एक खैमा के दरवाजे पे आके पाक आली और मौला हुसैन के कदम रुक गए। क्या देखा, अजीब मंजर है। एक कुर्सी लगी हुई है, अब्बास और अली अकबर खड़े हुए हैं। अब्बास कहता है, आज मुझे चचा ना समझ, आज मुझे उस्ताद न समझ,
आज तू मोहम्मद बन के कुर्सी पे बैठ, मैं अली बन के ज़मीन पे बैठता हूँ। हाथ जोड़ के कहता है, चचा अब्बास मुझसे ये गुस्ताखी नहीं हो सकती, आपसे मैंने अदब पढ़ा है, बस बातें यही होती रहीं। या थोड़ी देर बाद अब्बास कहते हैं, अली अकबर सुबह जंग होनी है और देखना सबसे पहले मैं जंग करने जाऊंगा, सबसे पहले मैं शहीद हो जाऊंगा। अली अकबर हाथ जोड़ के कहता है, चचा ना, तू ना जाई, भाई भाइयों का जोरे कमर होते हैं, आप चले गए तो मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी, मैं जाऊंगा, मैं जो हुसैन की बेमोल कुर्बानी हूँ। अब्बास कहते हैं, ना अली अकबर तू ना जाना, जवान बेटे बुजुर्गों बापों का आँखों का नूर होते हैं, तू चला गया मेरी आँख, हुसैन की आँखों का नूर चला जाएगा। अभी ये बात ख़त्म ना हुई थी या दो हाथ अब्बास और अली अकबर के कदमों पे आए। 13 साल का कोई जवान था जो रो के कहता है, ना चचा तू जाना, ना भाई अली अकबर तू जाना, मुझ यतीम को भेज देना, मेरे जाने से ना किसी की आँखों का नूर जाएगा, ना किसी की कमर टूटेगी। ये जुमला कहना था। आलिया और हुसैन मिल के रोने लगे। हुसैन रो के कहता है, कासिम बाकियों के जाने से एक नुकसान, तेरे जाने से 2 नुकसान। और ज़्यादा रो, कौन कौन से? कहता पहले तो मेरे भाई की निशानी है, मेरे हसन की निशानी ख़त्म हो जाएगी, और जिनकी औलादें जवान हैं, जिनकी बेटियां जवान हैं, वो इस दर्द को समझेंगे। अल्लाह तुम्हारी बेटियों की शादी जल्दी करे। हुसैन रो के कहते हैं, कासिम दूसरा नुकसान ये है, तू मेरी फातिमा कुबरा के सुहाग है, और तेरे जाने से मेरी बेटी बेवा हो जाएगी। अज़ादारों एतराज़ करते हैं, अपने भी एतराज़ करते हैं कि कासिम की मेहंदी कहाँ से आ गई, हुसैन ने शादी कहाँ से कर दी। अज़ादारान मज़लूम करबला, पहली बात यह है कि अरब में आज भी रवाज है, 2 कबीलों की आपस में लड़ाई हो ना, जो कबीला जंग टालना चाहता हो, जो जंग ख़त्म करना चाहता हो कि किसी तौर से जंग रुक जाए, अमन कायम हो जाए, वो क्या करता है, अपने किसी जवान बेटे के सर पे सेहरा बांध के उसे मैदान में भेज देता है। कबीले मुखालिफ वाले जितने बड़े ताकतवर हों, तलवारें अपनी नियामों में डाल के कहते हैं, यार हमारी लड़ाई इसके बाप से है, इसकी खुशियों को हम नजर नहीं लगाते, हम जंग खत्म करते हैं। हुसैन ने भी यही हरबा इस्तेमाल किया, हर हुज्जत तमाम की है। कासिम को सेहरा बांध के भेजा। जंग में बुजुर्ग नहीं लड़ा करते थे, हबीब इब्ने मुजाहिर जैसे बुजुर्ग को भेजा। जंग में बच्चे नहीं लड़ा करते थे। 6 माह के असगर कर शर्मा के रोना रोने की रातें हैं। पता नहीं किसके पहलू में सैयद सज्जाद बैठ के खून रो रहा है। कोई बंदा बेपरवाही ना करे। अज़ादारान इमाम मजलूम, पर्दे में आए हुए बीवियों को जिसने पुरसा देना है 2 लम्हे के लिए तवज्जो कर ले। अज़ादारान इमाम मजलूम कहते हैं, एतराज़ करते हैं, हुसैन ने शादी क्यों की? पहली वजह ये थी। दूसरी वजह यह है कि जाओ जाके देखो तो सही ना, आज भी खैमा गाह में हुजलाए अरूसी शहजादा कासिम मौजूद है। आज़ादा जब मैं पहली दफ़ा ज़वारी के लिए गया, मैंने हुजला अरूसी देखा, कहीं पे गाने, कहीं पे शेरे, कहीं पे मेहंदी के निशान। हमारे साथ एक तर्जमान अलामा मौजूद था। मैंने अलामा से पूछा कि भला ये गाने, ये शेरे, ये मेहंदी के निशान हुजला अरूसी शहजादा कासिम पे कैसे? अलामा रोने लगा। रो के कहता है, अरब में रिवाज है, 61 हिजरी के बाद से लेके अब तक अरब में जिस जवान की भी शादी होनी होती है, जवान तैयार होके मेहंदी वाली सेज पे जब आता है, बहनें थालियां उठा लेती हैं, कहती हैं तू इंतजार कर, पहले कासिम को मेहंदी आती है। मेहंदी के हाथ कासिम के हुजला अरूसी पे लगा के रो रो के कहती है, कासिम तेरी हसरतों का सलाम, कासिम कभी तू भी दुल्हा बना होगा। कासिम अल्लाह जाने उम्मत ने तेरे साथ कैसे कैसे जुल्म किए। अज़ादारान इमाम मजलूम, बस चढ़ा 10 मुहर्रम का दिन, जंग शुरू हुई, जंग जारी है। 9 मरतबा माँ के खैमा में, 9 मरतबा हुसैन के खैमा में हसन का 13 साल का यतीम गया।
लेकिन हुसैन ने ये कह के वापस भेज दिया, तुझ पे अभी जंग वाजिब नहीं हुई, अभी तेरा सन 13 साल है, अभी तू कम सन है, अभी तेरे लड़ने की उम्र नहीं है। अज़ादारान इमाम मज़लूम जब आखिरी दफ़ा माँ के खैमा में आया तो आके रो के कहा, अम्मा अम्मा एक दफ़ा मुझे इजाज़त ले दे। बीबी रो के कहती है, कासिम याद रख, जब तक तू लड़ेगा नहीं तेरी माँ तुझसे राज़ी नहीं होगी। और तेरे बाबा पे लोग तोहमत लगाते हैं कि हसन लड़ना नहीं जानते थे इसलिए सुलह कर ली। आज मैदान में जाके देख ले कि मैं उसी हसन का खून हूँ। अज़ादारो शहज़ादा कासिम कहता है, अम्मा अम्मा फिर कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल कर, चचा मुझे इजाज़त दे दे। अचानक बीबी को कोई बात याद आई, कहती है कासिम ज़रा बाजू करीब कर। कासिम ने बाजू करीब किया, बीबी ने बिला तशबीह कासिम के बाजू से बंधा हुआ इमाम हसन का तावीज़ खोला। कहती है याद कर, जब तेरे बाबा का आखिरी वक्त था तेरे बाबा ने ये तावीज़ बांधते हुए कहा था, जब बड़ी मुश्किल होना इस तावीज़ को खोलना। आज़ादारो तावीज़ लेके जनाब फरवा लेके चली तावीज़ कासिम को साथ लेके हुसैन के पास आई। हुसैन ने बिस्मिल्लाह कहते हुए इस्तकबाल किया। बजाई अम्मा मुझे बुला लिया होता। बीबी कहती है, आज तेरे भाई की बेवा बन के नहीं आई, सवाली बन के आई। सवाली बन के, शर्मा के ना रोना, थोड़ी देर भी हो जाए, पुरसे की रातें हैं, सब्र के साथ आज सवाली बन के आई हूँ। अज़ादारों बीबी हाथ जोड़ के कहती है, हुसैन वक़्त का इमाम है, मैं तेरी रैयत से हूँ, मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। कासिम को गले से लगा के हुसैन ने कहा, मेरे हसन की निशानी तेरी बेविकी का सहारा है, तेरे पहले बेटे भी शहीद हो चुके हैं, कासिम को मैं जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। अज़ादारो बीबी ने बिला तशबीह वो तवीज़ खोला, इमाम हसन का लिखा हुआ ख़त हुसैन के सामने किया। हुसैन ने भाई की तहरीर देखी, चूमा, आंखों से लगाया, लिखा हुआ यही था, हुसैन मुझे जहर ने मोहलत नहीं दी और गुर्बत के आखिरी वक्त में अगर ज़िंदा होता तेरा साथ देता, लेकिन जब आखिरी वक्त आ जाए तो मेरे कासिम को मेरी तरफ से जंग में जाने की इजाज़त देना। अज़ादारो हुसैन ने तहरीर पढ़ी, रो के कहते हैं, हसन तुझे सलाम हो। और गुर्बत में हुसैन को याद किया, कासिम को गले से लगाया। सैयद इब्ने ताउस मक्तले लहव वाला लिखता है कि हुसैन ने कासिम को गले से लगा के इतना गिरिया किया कि गश कर गए। थोड़ी देर बाद फाका हुआ, कहने लगे, कासिम मैं तैयार करवाता हूँ। अज़ादारो हुसैन ने तबरक़ात वाला संदूक खोला, कहते किताब में जुमले ये मौजूद है, तेरे मातम के लिए काफ़ी होंगे कि अलबिस्याबहू का सोबिल कफन, हुसैन ने ऐसा लिबास पहनाया जो कफन की मानत था। तहतुल अनक जिंदा कासिम को बांध के कफन पहना के हुसैन कहता, जा फुफियों से मिलना। जुम्मे मौजूद है किताब में, कासिम जब फुफियों से मिलने गए तो फुफियों की ये हालत हो गई जैसे कासिम ना आया हो, हसन का जनाजा वापस आया हो। बस विदा हुए कासिम, फुफियों ने मातम किया, माओ ने मातम किया, बहनों ने मातम किया, कासिम विदा हुए। आए जहाँ मौला हुसैन मौला अब्बास खड़े थे। अज़ादारो मौला अब्बास क्योंकि उस्ताद थे शहजादा कासिम के, जंग के गुर सिखाने लगे। कासिम हौसले के साथ लड़ना, कासिम 3 दिन का प्यासा है, जल्दी ना करना, कासिम हमला करने में पहल ना करना। अज़ादारो सबसे आखिर में गाजी अब्बास ने एक जुमला कहा है, जो नौजवान मातमी बैठे हो हाथ बांध के मिन्नत करता हूँ, दुख लगे मुझे माफ कर देना। गाजी अब्बास कहते हैं, कासिम जंग में जा रहा है, सोच समझ के लड़ना। आगे वो है जिन्होंने जनाजे में तीर मारे। अज़ादारो कासिम गए, पहले हमले में प्यासे कासिम ने 30 जवानों को फिन्नार किया, दूसरे हमले में 70 को मारा, तीसरे हमले में अरजक पहलवान आया, टीले पे खड़ा था गाजी, हाथ मल मल के कहता रहा, मौला एक दफा मुझे इजाजत दे दो, वो पहलवान है, मेरा कासिम कमसन है। अज़ादारान इमाम मज़लूम कासिम ने अपनी जीन पे खड़े होके ऐसा वार किया, ये जालिम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। उमर इब्न साद ने यह हालत देखी, कहने लगा, सारे मिलके हमला करो, ये हाशमी खून है। अब जो चारों तरफ से हमला हुआ, अज़ादार कासिम जख्मी
ہو کے زین سے زمین پہ آئے. عزادارو مشرق کے گھوڑے مغرب، شمال کے گھوڑے جنوب دوڑ گئے. جب حسین پہنچے تو قاسم نہ تھا، تقسیم ہو. ماتم کرنا یار، قاسم نہ تھا، تقسیم ہو گیا تھا. عزاداران امام مظلوم بلا تشبیہ میرے مولا نے، میرے غریب امام نے بلا تشبیہ آواز دی. قاسم تیرا چچا بلا رہا ہے، مجھے آواز دے. آواز نہیں ہے. قاسم تیرا پالنے والا بلا رہا ہے، آواز دے. آواز نہیں آئی. قاسم کربلا کا غریب بلا رہا ہے، آواز دے. آواز نہیں آئی. تیسری دفعہ مولا نے لہجہ بدلا، کہنے لگا وقت کا امام آواز دے رہا ہے، آواز دے. اب کوئی ٹکڑا کہاں سے اٹھا، کوئی کہاں سے. چچا میں ادھر ہوں، چچا میں ادھر ہوں، چچا میں ادھر ہوں. بلا تشبیہ امام نے یوں ابا بچھا کے جیسے مالی باغ سے پھول چنتا ہے، قاسم کے ٹکڑے چن کے اب آ کے دامن میں رکھنا شروع کیے. یا میرے مولا نے دیکھا کوئی نوجوان ہے جس کے منہ کے اوپر نقاب ہے، دور دور سے گھوڑوں کے سموں کے نیچے سے قاسم کی لاش کے ٹکڑے نکالتا ہے، چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اب آ کے دامن میں آ کے رکھ دیتا ہے. حسین نے کھڑے ہو کے پوچھا کون ہے میری مشکل وقت میں مدد کرنے والا. نقاب ہٹا کے کہتا ہے پہچان میں حسن ہوں، میں قاسم کی شادی میں شرکت کے لیے آیا ہوں. کیا کروں، قاسم کی شادی موت سے ہو گئی. عزادارو دونوں بھائیوں نے مل کے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور مجھے ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں اور جنازہ بچے کا بھی ہو تو 4 مردوں کی ضرورت ہوتی ہے. عزادارو جنازہ بچے کا بھی ہو تو 4 مرد اٹھاتے ہیں. کربلا میں حسین نے قاسم کو ایسے اٹھا، شرمانا یار. لے آؤ قاسم کی مہدی، لے آؤ قاسم کا جنازہ. ماتم کرتے ہوئے حسین قاسم کو ایک گٹھڑی میں باندھ کے قاسم کو لے کے خیموں کی طرف چلے. جناب عالی عزادارو رولے والو، اللہ تعالیٰ ماتم قبول کرے یار، اللہ تیرا ماتم قبول کرے. حسین اکیلا قاسم کی گٹھڑی بنا کے جب خیمہ کے دروازے پہ پہنچا، عالیہ کہتی ہے ساری لاشوں کو لے کر آیا ہے اور میرا قاسم نہیں آیا. حسین نے گٹھڑی عالیہ کے سامنے رکھی، رو کے کہتا ہے جتنا ملا ہے قاسم لے آیا ہوں، باقی کھا کے شفا بن.